ट्रस्ट मी 250 के 250 लोग ये तो मुझसे पूछते ही हैं मेरा पर्पस क्या मेरा है? पर्पस क्या है मैम. सो आई टेल एवरीवन यू आर नॉट born with one purpose. Okay. There are different phases of your life. When you said that what is about relationship, Hmm. what is about career, what is about other things, it is very different for everything. But as a life आप क्या चाहते हो, जैसे कहते हैं ना academics में आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये डिसाइड नहीं करना चाहिए आपका करियर क्या है. Sanskriti, there are a lot of people who work really very hard in their life, day and night, but nothing is working out for them. So what do you have to say to those people? सो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन टेक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वंस इन योर लाइफ. अगर आप एक बार लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे मुझे जो वे आउट मिला है ना, इट हेल्प मी 6 months डाउन द लाइन. नाउ अगेन आफ्टर 6 months इफ आई टेक अ रीडिंग आई एम सॉर्टेड. Negative thinking delay success. 100% दोनों ये दोनों चीजों की बात करते सो नेगेटिव थिंकिंग इज बेसिकली नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस. हैं. Negative thinking is not having confidence. ठीक है. Okay. कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता जब आपका बिलीव सिस्टम वीक है. एवरीथिंग यू स्टार्ट यू विल कम टू द वर्ड बिलीव सिस्टम. Hello everyone. Welcome to another inspiring episode of The Career Compass. I'm your host Shilpa Miglani Naran. But आज का पॉडकास्ट मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगी. क्या आपको कभी कभी लगता है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते? There are some people who find the purpose of their life at a very early age, but there are some who fail to struggle the purpose of life. And this conversation is very, very important for all of you. Today, we are going to explore completely different perspective. We have with us an Akashic record reader, psychic medium, spiritual guide who has helped and transformed lives of thousands of people. Please join me in welcoming Ms. Sanskriti Sethi. Sanskriti, welcome to the Career Compass. Thank you so much, Shilpa, for having me. Thank you so much. So, Sanskriti, I would like to ask, जो आपने इतना कुछ लाइफ में अभी तक अचीव करा है, there are a lot of people who come to you and you are working across 40 plus countries, I believe. Yes. So when did this journey start? I want to know your journey of a little Sanskriti, that little girl who always knew कि मुझे साइकिक ही बनना है, या नहीं पता था, this journey came to you by chance. तो आप उसके बारे में बताइए please. Yes. So, Shilpa, it started in 2011 for me. I was 19, 20 years at that point of time. और मुझे बिल्कुल भी साइकिक नहीं बनना था. My dream was to कि मैं एक एक बुटीक ओपन करूंगी एंड मैं एक डिजाइनर बनूंगी एंड विद ऑल दैट फ्रेंड्स होता है ना हम अपने कॉलेज में और सब डिस्कस करते हैं. दैट वाज माय विजन इन लाइफ. बट there was a sudden demise of my grandmother, मेरी दादी. She died आप of दादी माँ के साथ रहते थे. so it's like कि हमारे घर एकदम पास पास थे. So यहाँ दादी का घर था, थोड़े से घर छोड़ के मम्मी पापा मैं और हमारे सब siblings रहते थे. And since I was the first child of the house, very very loving and adorable to everyone. होता है ना वो अरे घर का एक ही बच्चा, because my father is like the eldest one. And she died out of cancer in May 2011. I was set back by the death. And because I was so close to her, she raised me like her own baby. And just after a few days, होता है ना किसी की डेथ के बाद you grieve, you mourn. She started channeling into my body. Oh my God. She started telling me things. ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करियर का ये है, शादी का ये है, बिजनेस का ये है, प्रॉपर्टी का ये है. She was guiding everyone around me. And when she used to come into my body, I used to feel safe. समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. मम्मी को लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो आपकी वॉइस भी चेंज हो गई? वॉइस भी थोड़ी बहुत चेंज होती थी उस टाइम पे. शी यूज्ड टू ईट इन माय बॉडी, शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक शी यूज्ड टू फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम. जब वो आते थे एंड इट वाज एब्सोल्युटली सेफ. बट एक पेरेंट को होता है ना, अरे यार मेरी बेटी अभी 19 ईयर्स की है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, अभी क्या हो गया है इसको. बट इवेंचुअली वी अंडरस्टैंड इट्स एन एंसेस्टर्स दैट हैज चोजन मी to be their language and their communication for the family. And उस time पे मुझे नहीं पता था that one day Sanskriti Sethi will become a brand or we will be in 40 plus countries globally. It started abruptly for me, and eventually as I grow in life, मेरी शादी हुई, मेरी daughter हुई, people started coming to me, we started guiding people online, and it started opening the doors one after the other. एक के बाद एक कहते हैं ना चलो तो रास्ता खुलता जाता है. So वो खुलता गया for me, and today I'm here. So that was a turning point. That's really very amazing. And dear viewers, this conversation is going to be very, very different as compared to any other. So, Sanskriti, in case, somebody realize कि मेरे अंदर कुछ psychic capacities हैं, capabilities हैं, तो पहले तो आप audience को ये बताएं कि who an Akashic reader is, psychic abilities होती क्या हैं और कैसे पता चलता है ये सब. Definitely. And let us clear this, जिस career की हम बात करने वाले हैं, Yes. ये होता क्या है? Because 99% लोगों को पता नहीं होगा यहाँ पे. I'm sure. I'm sure. So I've always made simple things very simple for people. So I'll make this also simple today.
We all are psychics. Psychic and medium are two different terms. Medium is someone who channels spirit and talk. That is a very different concept. But psychic, we all are psychic at one point of time. अगर हमें पता है कि हमें भूख लग रही है, आज हमें 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, या तो आज मुझे आज भूख भूख ही नहीं नहीं है, है, मुझे भूख तो ही नहीं आज। मुझे आज भूख नहीं है. So ये कैसे पता आपको? नींद आ रही है, कैसे पता आपको? कभी आप 8 बजे सो रहे हो, कभी आप 10 बजे सो रहे हो. What is there in you that is telling you कि भूख क्या है, प्यास क्या है, या आपको कहीं जाना है, या you're feeling things. These feelings are your psychic abilities. So there are 5 major psychic abilities that people have. अब वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे है, कौन सी ज्यादा एक्टिव है, कौन सी कम एक्टिव है, या कौन सी डोरमेंट है, ये आपको पता लगता है थ्रू अ साइकिक. सो कई लोगों को अच्छे से विजन आ जाता है कि मैंने इमेजिन कर लिया है कि मैं ऐसा बनूंगा, या मुझे ना सुनाई देता है, या मुझे स्मेल को लेके मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, या मैं टेस्ट को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ. सो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटीज विच इज वेरी हेल्पफुल एज अ ह्यूमन, वेदर अ स्टूडेंट और एन एडल्ट. आपको एक वाइब आ जाती है, जो वाइब है ना, दैट्स योर साइकिक और एबिलिटी. कितनी बारी ऐसे होता है संस्कृति लाइफ में कि अभी जहाँ पे मैं हूँ, अभी जो हो रहा है, आई फील ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, ये तो कुछ भी नई बात नहीं है. सो व्हाट इज दैट आल्सो So, समथिंग so रिलेटेड that टू is deja vu, technically. व्हाट डू वी कॉल इट? Deja vu. डेजा वू. Deja vu, ठीक है. ओके. So deja vu is something that you feel that ये reality में हो रहा है, और ये पहले भी हो चुका है. So most of the time it is our past life experience that is repeating itself in the current form and current life. So Akashic records भी उससे connected है. I'll tell you in very brief. So Akashic record is like a book of life. इट्स अ बुक ऑफ It's लाइफ. a book of life. Book हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि as humans we believe on what we see. So if I tell you it's a energetic realm, शायद आप imagine नहीं कर पाओगे. But if I tell you as a beginner that imagine it is a book of life, and whatever you want to know from your life, you know it from this book. Because क्या है ना, आपका कुंडली जो है, एस्ट्रोलॉजी जो लोग बिलीव करते हैं, it keeps changing. नो, इस जन्म में आप हो सकता है हिंदू थे तो आप ये मानते हो, आप क्रिश्चियन थे तो आप वो मानते हो. It keeps changing with your span, but your soul energy keeps सो the same. Akashic records is the energy of your soul. It इट्स talks द about एनर्जी ऑफ योर सोल. आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, व्हाट इज द फ्यूचर स्टोरिंग फॉर यू. आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन्स एवरीथिंग. तो अगर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लम है, यू कम टू योर बुक ऑफ लाइफ एंड आस्क lovely. what is there in my life stored for me, whether you want to make a new career, whether you're not getting a job, whether your job is not stable, whatever it may be. Since we are talking about careers today, whatever it may be, your book of life have the answer to everything, and it is every time in making. Why? Because आज आप क्या कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है ना कल आप क्या बनोगे. So present is important, and for that past is absolutely essential. आज आप जो कर रहे हो, you've done something maybe 10 years in your life to become this. Yes, absolutely. So you don't become anything in a day. So your past is important, right? Similarly, when we talk about our career or any other thing, our past is absolutely essential. So, Sanskriti, I'd like to tell you why we started this career compass. I am a career counselor. It's been 15 years. I'm into the field of training and placements and guiding people across what you have to become. So I've lived life of an engineer, a corporate girl, and then an MBA. Then I was into academics. But when somebody asked me कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, I can guide कि ये entrance exam है, आप prepare करो, and you can do that. We do psychometric test also Well, that's to nice. give them more clarity on the things. But when somebody asked me कि मैम how is the life of a gynecologist different than a dentist, let's say, so I'm not the right person for that. So that was my reason to start this. People like you who are to different professions and they're doing really amazing in their life and they're proud of themselves and people also around them are proud of them. So I thought, why not to have people like you with whom we can have unfiltered conversation, Conversations, heart to heart, so that if any student or any perspective, anybody who would want to become like you, if they're watching this podcast, this should be a guiding light for them. Maybe the decision can be changed. Yes. Right? So कैसे आपने डिसाइड करा? So it came to you by chance, I believe. Naturally, yes. But there are some who are feeling some of the things that मेरे को ये दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है, मुझे intuition people call it, right? So how is intuition different than the psychic ability? Intuition is one form of psychic ability. Okay. Okay, like I told you, कई लोगों को दिख जाता है. If I tell you, okay, for the viewers also, let's do a small game. So let's say let's bake a cake. Okay, and it's going to be 2 minutes, so keep your attention to this. So let's bake a cake, and let's go to a kitchen, and let's take all the ingredients. Let's mix it well, whatever you want to bake, chocolate, vanilla, whatever you like. Let's preheat the oven, and now let's mix everything and put it in the oven and let it bake. Let the fragrance come out. Just let's see the cake baking. It's baking in a very fluffy way. It's very nice. And now let's take out. It's really hot. Be very, very careful. And now let's cut it into pieces, garnish it any way you want, and let's enjoy. Now, आपको केक दिखा, स्मेल आई,
फील हुई। फील हुआ। सो ये अलग-अलग साइकिक एबिलिटीज़ हैं। सम पीपल कैन सी, ओह आई कैन रियली सी कि इस कलर का पॉट था, माइक्रोवेव ये एवरीथिंग वाला आई था। वाज एबल टू सम सी। पीपल लाइक, ओह आई वाज स्मेलिंग डोमिनोज़ वाला चॉकलेट या फिर ये वाला चॉकलेट। समबडी वाज, आई कुड फील दैट मैम वो कितना स्पॉन्जी था। सो दीज़ फीलिंग्स आर डिफरेंट साइकिक एबिलिटीज़। इंट्यूशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सो इफ यू डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज इन योर हेड वन मोर टाइम, अभी तो फास्ट फॉरवर्ड करा है मैंने। इफ यू डू इट वन मोर टाइम, क्योंकि हम ये ऑटोमैटिक राइटिंग वर्कशॉप में करते हैं। ओके। हियर यू नो कि आपकी साइकिक एबिलिटी क्या है। व्हेन यू नो दैट, यू नो कि मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये मेरा बेस्ट है। ये मेरा डोरमेंट है, इसको मैं धीरे-धीरे बढ़ाऊँ। हुँ। It helps you in your day-to-day life. वेरी नाइस। सो संस्कृति, लेट अस टॉक अबाउट द पर्पस। Yes. कहीं अगर मतलब हम बच्चों को गाइड करते हैं ना, तो आई आस्क देम फाइंड द पर्पस, एंड किड्स आल्सो आस्क कि मैम मुझे अपना पर्पस पता ही नहीं चल रहा। सो एज पर यू, व्हाट इज एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ? इज इट गेटिंग अ गुड जॉब? इज इट गेटिंग मैरिड? Hmm. इज इट गेटिंग मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी? और इज इट गेटिंग सक्सेसफुल? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द पर्पस ऑफ वन्स लाइफ? यू कैन रिलेट इट टू द सोल आल्सो। Absolutely. So ये तो इतना commonly asked question है। मतलब अगर if I do 250 readings in a month, trust me 250 के 250 लोग ये तो मुझसे पूछते ही हैं। मेरा पर्पस क्या मेरा है? purpose क्या है मैम? So I tell everyone, you're not born with one purpose. ओके। There are different phases of your life. When you said that what is about relationship, what is about career, what is about other things, it is very different for everything. But as a life, आप क्या चाहते हो? जैसे कहते हैं ना, academics में आपके कौन से subject में कितने marks आ रहे हैं, ये decide नहीं करना चाहिए आपका career क्या है। आपका करियर सिर्फ एक चीज पे डिसाइड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। यू आर एन एक्सपर्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व? Oh, that's very nice. In fact, this relates when I talk about entrepreneurship. यस। I tell my trainees that whenever there is a problem, there is a solution. Find out that problem and give a solution. यस। So that is what I talk about entrepreneurship, but not in the career. But that's a good thing. What you are suggesting. यस, सो इट्स लाइक दैट, डोंट सी कि मेरे इसमें ज्यादा नंबर है या मेरे उसमें ज्यादा नंबर है या मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है। इट इज अबाउट what problem can you solve once, and where is your attachment, like you said about कि मैं गायनी बनूं या मैं पेडिट्रिशियन बनूं। see what you like, and this only you can know when you work on your psychic abilities. Hmm. बिकॉज़ सब लोग होते हैं, अरे मुझे थोड़ी मीडियम बनना है या मुझे थोड़ी साइकिक बनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू डोंट नो what your inner self is telling you, you cannot do best in your career, you cannot be best with your employees or colleagues, you cannot be best in your marriage, in your friends, you're going to be trying fitting everywhere. Psychic ability is starting from आज मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे बात करनी है, you know it. You can only know it when you sit with yourself. If every student sit with themselves 10 minutes in a day without phone, looking only at the walls, Hmm. trust me, in 21 days you're going to be a changed human being, and that is as simple as a And it is student for can do. everybody, not It is just for for the children. everyone. It is for everyone, क्योंकि 10 मिनट ना एक खाली कमरे में रोज बैठना बहुत मुश्किल। So is Trust it me on this. like doing a meditation kind of thing, or just looking at the सी wall? मेडिटेशन बहुत लोग समझते नहीं है कि क्या है। आई थिंक अगर किसी को भी बोले मेडिटेशन क्या है, तो बोलेंगे ओके, आई हैव टू सिट लाइक दिस एंड आई हैव टू जस्ट मेडिटेट और चैंट समथिंग। यही होता है मेडिटेशन। इट्स नॉट लाइक दैट। मेडिटेशन इज समथिंग दैट गिव्स यू पीस। some people वो परेशान होते हैं, they go for a walk, it's a meditation for them. कई लोग परेशान होते हैं, they start cleaning everything, Hmm. it's a meditation. Some people say Decluttering your mind. I'm just not okay today, I'll make my own meal. बहुत सारे clients मेरे करते हैं, that's a meditation. Meditation is not to get something, it is to release what's happening. अगर cleaning, cooking, walking, jogging, gymming आपको clearance दे रहा है, let go करने दे रहा है, that's your meditation. So 10 minutes sitting with yourself in a closed room with nothing to watch, see book, कि चलो मैं बुक पढ़ लेता हूँ या मैं फोन देख, आपको कुछ नहीं करना, you have to see the wall in your room, just observe, क्योंकि 10 मिनट रोज खुद के साथ बैठना बहुत मुश्किल है in the Without AI, mobile without phones. mobile phone, That's very, very important. without book, कि चलो मैं कुछ पढ़ लेता हूँ या कुछ भी नहीं, हाँ कुछ कुछ भी नहीं, कुछ कुछ सफाई भी भी नहीं नहीं। करनी, कुछ नहीं हाँ। करनी, you just have to sit with yourself 10 minutes, you're going to feel like another एक जन्म निकल गया। It is so difficult, trust me। हम बिगनर्स को बोलते हैं ना जब ऑटो राइटिंग में, श्वेता 10 मिनट आपको बैठो, they are also students, they are also learning, कि 10 मिनट आपको बैठना है। कहते हैं मैं तो 1-2 मिनट में ऐसे हो गया था कि मैं क्या करूँ। It is so सामने difficult। बैठ के बस घड़ी देखो, 10 मिनट हाँ, बैठ आप देखो घड़ी देखो, आपको ऐसा लगेगा 10 मिनट ही नहीं हो रहे हैं। के। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग आई थिंक एवरी स्टूडेंट कैन डू एज अ बिगनर। इसमें कुछ आपको चाहिए नहीं, बट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ टुडे। वेरी नाइस। सो संस्कृति, देयर आर पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। यस। तो क्या कभी ऐसा होता है कि दे आर सक्सेसफुल, दैट्स ओके, दैट्स वन पार्ट, बट दे हैव नॉट स्टिल रियलाइज्ड द पर्पस ऑफ लाइफ? ओके। सो सक्सेस की ना डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। फॉर यू मे बी समवन हु हैज पॉडकास्ट चैनल जिसके इतने व्यूज हैं, इज वेरी सक्सेसफुल। इफ आई टेल यू वन केस स्टडी हियर, सो 2 डिफरेंट लोग थे, एक का कुछ 500 करोड़ का टर्नओवर था, अच्छा। एक की 50,000 की सैलरी थी। हम्म। ठीक है। अब सक्सेस आप एज अ थर्ड पर्सन देखोगे, यार इसकी इतनी सैलरी, इसकी तो नहीं है। हम्म। दैट पर्सन हु हैज 500 करोड़, लुधियाना का ही केस है। वाइफ से नहीं बनती, दैट्स मे बोथ आर मेल्स, वाइफ से नहीं बनती, बच्चे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, सब अपने घर में खाना खाते हैं, वो रोज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेके और खूब पी के सोता है, बिकॉज देयर इज सो लोनलीनेस, इज ऑलवेज इन अ फियर कि कुछ हो जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। अदर पर्सन इज 50,000, कूलर में सोता है, बच्चे भी दोनों देखने हैं, वाइफ भी देखने हैं, पाव भाजी खाते हैं, हैप्पी, नो मेडिसिन, एब्सोल्युटली हेल्थ।
सो आप सक्सेस ऐसे देख सकते हो कि इसने 500 करोड़ कमा लिए, मैं सक्सेस ऐसे देख सकती हूँ, ही इज सो पीसफुल, ही इज अ फैमिली ओरिएंटेड, परिवार कितना खुश है. सो एनीबडी हु इज सक्सेसफुल इन लाइफ, फर्स्ट यू नीड टू सी व्हाट यू प्रायोरिटाइज व्हेन यू सी सक्सेस, because it is not only money. I'll not say it is always money. Money is very important being on earth, but it is not only money. It is about, do you sleep well? Do you feel adaptable in the work you do? कितने लोग हैं जिनके इतने इतने अच्छे अकेडमिक मार्क्स हैं और इतनी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं दुबई में, यूके में, एंड दिस इज अनहैप्पी, बट हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे हमें सैलरी इतनी अच्छी मिलती है. So you need So to, money has binded them. money is binding Binding them, them. money is binding them. So that money binding you have to let go and do. और इसलिए जो अभी स्टूडेंट्स अपना करियर स्टार्ट करें उनके लिए तो और अच्छा है. व्हाई डोंट यू नो इट फ्रॉम द स्क्रैच कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका क्या अच्छा है या आपकी लाइकेबिलिटीज और डिसलाइकेबिलिटीज क्या है, सो दैट यू एक्जैक्टली नो व्हाट यू डू, यू बिकम अडेप्टेबल बिफोर यू इवन स्टार्ट. Yeah. सो आपके लिए वो कितना अमेजिंग जर्नी रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर पीपल मैक्सिमम टाइम्स एटलीस्ट. Very nice. So, how would we get to know that we are following just the society or we are actually following our soul? So, how do we differentiate between it So as a see, student? as a Like, student, yeah. because parents होते हैं बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं यार तेरे नेबर ने एमबीबीएस करी है और देख कितना अच्छा कर रहा है, या वो इंजीनियर है तो ये कर, आर्किटेक्ट बन, मतलब ऑल दीज थिंग्स दे पुट अ प्रेशर. और कभी कभी पीयर प्रेशर भी होता है कि मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स ले ली है मुझे भी लेनी है. Very आई common. बर्स्ट ऑल दीज थिंग्स, बट एज पर यू हाउ टू फील दैट कि जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में या मैं कर रहा हूँ कि वो मैं सिर्फ सोसाइटी को फॉलो कर रहा हूँ या अपनी सोल का पर्पस अटैच्ड है, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें? ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी, वन फ्रॉम द पेरेंट्स प्रोस्पेक्ट एंड वन फ्रॉम द स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट. सो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना जरूरी है दैट द टाइम इज चेंजिंग मैसिवली. द करियर जो हम बचपन में सोचते हैं ना कि हम यार या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, दैट इज चेंज टू 100 डायमेंशंस टुडे बिकॉज द वर्ल्ड इज मैसिवली चेंजिंग. वी आर नो मोर इन द वर्ल्ड जहाँ पे तीन ही प्रोफेशन है. ठीक है. बिल्कुल. सो पहले तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि डायनामिक्स आपके जमाने की नहीं रही. आई एम ऑल्सो पेरेंट्स, आई एम सेइंग दैट डायनामिक आपके जमाने की नहीं रही है. द चिल्ड्रन आर मोर एडवांस एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके. So if parents understand that एक जगह से तो बच्चा फ्री होगा. Now coming to बच्चा, the kid who is making the career, I think they should take a pen and paper and they should be sitting with themselves for 21 days in a month. If they are impatient and they cannot do that much, at least 7 days. Number one, what are the options that they want to explore in life? Okay. ठीक है. It can be ये मम्मी ने बोला है, चाचा जी ने बोला है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला है, तो सब लिख लिख ले, लो, सब कुछ pen सब कुछ लिख लो. ठीक है. सबका ज्ञान आप लिख लो कि सबने क्या क्या बोला है. आई ओके, आई टेक और एवरीथिंग. जितना पता भी है वो भी जितना लिख लो. पता भी है कि चलो ये भी बन सकता हूँ, ये बिकॉज सी देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, यू विल नॉट राइट एवरीथिंग, यू विल ओनली राइट सर्टेन थिंग्स. ज्यादा से ज्यादा 4-5 चीजें लिख लो, कि ज्यादा नहीं लिख सकते. सो लिख लो आप. कम टू द नेक्स्ट पेज, मेक कॉलम्स. जो भी आपकी लाइफ में है, जैसे मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, मेरी सोसाइटी ये बोल रही है, जो भी जिस तरीके भी आपके डायमेंशन है आप उतने लिखो. एंड लास्ट में जस्ट राइट व्हाट डू यू फील. वंस यू डू दैट, देयर इज अ सेग्रीगेशन इन योर माइंड कि इतनी चीजें आ रही थी, अब इतनी चीजों में से ये डिवाइड कर दिया है मैंने. व्हेन यू गो टू नेक्स्ट पेज, राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ. ये 10 साल बाद जब शिल्पा अपने आप से मिलेगी, व्हेन शी विल बी 34, ठीक है, हाउ इज हर लाइफ. व्हेन यू राइट दैट एंटायर थिंग, यू नो एटलीस्ट 3 थिंग्स कि दुनिया से क्या आया, दुनिया में किस किससे क्या आया, खुद से क्या आया, मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ. बिकॉज व्हेन यू गोइंग टू राइट विद योर फ्यूचर सेल्फ, तो वन थिंग जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, आप किसी को खुश नहीं करें. Be happy with your जो भी future हम कर रहे writing. हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. We are not Just taking you anybody have to be honest in that. जैसे हम ये एक unfiltered podcast है ना, we are not reading anything. It's just that ये अगर आप unfiltered and spend that 7 days writing and exploring, I promise you at the 7th day when you come to a counselor like you, they will know कि यार maybe these are the 2 things. Now guys, they will not come with 5 things. ये home exercise आप 7 days की करके आओ. The answer that you will get is going to give you that, you know, confidence कि चलो अब ये करते. So I think that is going to work. Amazing and very crisply, very easy language she has explained. You all should try to focus on these things. Sanskriti, in case somebody would want to become a Akashic record reader, है ना, तो कब वो रियलाइज कर ले अपनी लाइफ में, मतलब उसके लिए क्या पढ़ाई है, अगर कोई पढ़ाई की जरूरत है तो. बिकॉज आई रियली इट इज न्यू कॉन्सेप्ट दैट हैज कम अप टू मी. Yes. अर्लियर अगर पहले की बात करो मैंने कभी सुना भी नहीं था, बट नाउ आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर टॉकिंग टू यू, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दिस थिंग. And my purpose of doing this podcast is actually getting satisfactory for my own self. So in case any student also holds abilities like you and they want to become psychic medium, let's say, or Akashic record reader, तो वो कैसे realize करें और कैसे बन सकते हैं? Okay. So, like you said before our podcast started, I'm becoming intuitive, or my child is an intuitive child. अपने अंदर ना हमें पता होता है. That's, you know, when you do that 7 days वाला ना, write Akashic record reader and a psychic medium also in that. Maybe write my name और की संस्कृति से सुना था. So when you write this, you will know that okay, I'm an intuitive, and trust me, Shilpa, जो coming generation है ना, they are more inclined to this thing. Why? Because maybe our generation was more about being best, like our parents wanted us to be, but the new generation that is coming, they're more about how do we feel happy in our own space and not push. They're not bothered about They're not big bothered. houses, or they don't need They're not anything. bothered They about need anything. about the Yeah. peace of mind. So they will eventually know कि
हमें अगर एक साइकिक मीडियम बनना है, सो मे बी आई हैव दिस, एंड इफ दे कम टू मी आई एम गोइंग टू टेल देम कि उनमें कितना एक्टिव है, हाउ एक्टिव इट इज, एंड ऑफ कोर्स वी गिव प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द सेम, जहाँ पे हम ये चीज बताते हैं कि आप कौन सी चीज कर सकते हो, कौन सी चीज, आर यू मेंट फॉर ऑटो राइटिंग, आर यू मेंट फॉर मीडियमशिप, और यू आर नॉट मेंट फॉर एनी ऑफ दीज, एंड यू आर मेंट फॉर एनी थर्ड थिंग। सो बहुत सारे लोग करने आते हो, मैं मना कर देती हूँ, मेरे साथ मत करो। मैं लिटरली my team said, why are you saying no? मैं because if they not learn 10 years down the line, if they don't do anything, they're going to think that okay 1 lakh rupees wasted or some amount wasted. So it's like whatever somebody is meant for, बस हम वही करें. Sanskriti, there are a lot of people who work really very hard in their life, day and night, but nothing is working out for them. So what do you have to say to those people? So अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन टेक अकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वंस इन योर लाइफ. अगर आप एक बार लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे मुझे जो वे आउट मिला है ना, इट हेल्प मी 6 months डाउन द लाइन. नाउ अगेन आफ्टर 6 months इफ आई टेक अ रीडिंग आई एम सॉर्टेड. मैं सबको बोलती हूँ कम टू मी ट्वाइस वीक, ओनली ट्वाइस वीक. टेक योर 6 months प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंगली. इस 6 months में ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, फॉर दैट वी डोंट डू एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग. तो अगर आप स्टक हो, आपका करियर है, आपके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सिबलिंग मिसमैच है, फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम है, लुक्स को लेके इश्यूज है, गो फॉर एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग टू अंडरस्टैंड क्या ये आपके पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, क्या ये आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये आपके यू नो is it happening something around you, is the energy problem. Akashic records help you decode problem कहाँ से आ रही है, कब से है, उसका solution क्या है, and how does future look like if this problem resolve. So it is going to give you that complete closure कि ऐसा नहीं कि आप बीच में कहीं छूट गए, प्रॉब्लम पता लग गया, पता नहीं सोल्यूशन क्या है. नहीं, तो जो पास्ट लाइफ है हमारी उसमें भी whenever आई बिलीव एवरीबडी इज द सोल है ना, तो सोल का तो रीबर्थ हो गया, तो वो क्लोजर कैसे सेटल नहीं होगा? तो So हम कर्मास में सेटल करने आए ना इस time, okay. इस जन्म में आई मीन टू से. So thing is, imagine that this is the powerhouse. Okay. From this powerhouse takes incarnation every life. Incarnation is rebirth. कि हम जन्म लेते हैं. So one, let's take talk. my example. Let's talk about you. So Shilpa took one life. In the previous life, she was Jackie, and in the more earlier life, maybe she was Richa. ठीक है? So now this powerhouse is one supply. सब कुछ यहीं से ही जा रहा है, यहीं से ही डीएनए, यहीं से एनर्जी है, यहीं से ही फ्रीक्वेंसी है. अब शिल्पा इस लाइफ में क्या क्या कर रही है, वो उसकी नेक्स्ट लाइफ में इफेक्ट करेगा. सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम रिचा जैकी शिल्पा ऐसे चलते हैं. सो रिचा ने अपने लाइफ में कुछ 10 ऐसे प्रॉब्लम्स करे जो इस पावर हाउस में स्टोर हो गए, एंड नाउ इट गोस टू जैकी. अब जैकी ने 15 बहुत अच्छी चीजें करी, वो भी इस पावर हाउस में सेटल हो गई. नाउ द सेटलमेंट कम्स टू +5. So now when it comes to Shilpa in this life, she is +5 plus what she wants to learn in this life. So collectively, we are a nutshell of all the lives we have taken. तो यार बताइए, मैंने तो जिंदगी में ना कुछ भी बुरा नहीं किया है. ये बहुत ही लोगों का क्वेश्चन हाँ, है, मैं तो कभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? Because you are only seeing your 20 years. You can't see those 2000 years you've already lived and come. और आप बोलोगे कि अभी जैसे मेडिकल केसेस भी आते हैं कि मैंने तो लाइफ में कभी ये भी नहीं खाया, भी नहीं पिया, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई. तो संस्कृति मुक्ति नहीं होती क्या? साल्वेशन जिसको बोलते हैं, Uh, आत्मा की, हमारी सोल की. So liberation is a process में power house is eternity, ना. Soul rebirth लेती रहती है. नहीं, बट जैसे सोल तो अभी कहा जाता है ना कि once you have achieved the salvation और liberation हो गई आपकी, then there is no rebirth. तो वो क्या concept होता है? rebirth, I'll tell you. So liberation is what we experience after death. ठीक है? So this powerhouse में अब जब शिल्पा will complete the closure of this life, she'll go back to the powerhouse. And in the powerhouse there are 8-9 steps which is going to happen, and then she's going to go to another life, another country, another city, whatever new phase, new gender, whatever she says कि मुझे इस life में ये experience करना है. So liberation is that you are experiencing in every life. Now your question is, why are we taking rebirth, or is it necessary for us to For us take to rebirth? take. So rebirth is a choice of the soul. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा ना जीरो अकाउंट हो गया. दिस इज वेरी वेरी लेस. जिन लोगों का लिबरेशन और जीरो अकाउंट हो जाता नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दोस पीपल. दे आर वेरी फार फ्रॉम लाइफ. दे कम फॉर द चेंज ऑफ ह्यूमैनिटी. जो एक बंदा जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया एंड उसने पूरे देश को हिला दिया या पूरे वर्ल्ड लेवल पे चीजों को हिला दिया, दैट पर्सन इज एक्चुअली अ लिबरेटेड सोल टेकिंग रिवर्थ अगेन विद अ पर्पस. सो वी चूज फ्रॉम दिस पावर हाउस कि हमें कौन से कर्मास लेके इस लाइफ में जाना है. इफ वी डोंट डू दैट, इट्स माइनस हियर, देन इट्स माइनस. तो अगर आप सॉल्व अभी नहीं कर रहे हो, कभी तो करना ही पड़ेगा. एस्केप नहीं. Better you find it, you solve, you move to another thing, you solve, you move to third thing, you solve. You need to constantly work on yourself every single day. आप अपने बॉडी पे भी तो काम होते हैं. रोज नहाते हैं, रोज हम अच्छे कप साफ कपड़े पहनते हैं, we water our plants daily. हम रोज सांस ले रहे हैं, नहीं चल अब 2 दिन सांस नहीं लेते. 2 सेकंड भी नहीं रोक पाते So is हम, it है ना? something is in our process, no? So we have to work on ourselves every single day. We cannot escape. So जो लोग escape नहीं करते, they become successful. Success is money with peace. नहीं, A नहीं. peaceful money is success, I think. आई थिंक एक बंदा अगर रात को बहुत ही निश्चिंत होकर सो रहा है और अच्छी जगह पे सो रहा है, तो पर्सन इज सक्सेसफुल. Successful. कल की इतनी चिंता नहीं है.